Hello, everyone, and welcome to a brand new episode of Twenties Podcast. So, this episode is a kind of realization. Actually, me and Kashish were having a conversation a day before, and it struck our mind that we talk a lot about financial inequality in the society, but we do not talk about the social inequality, which is in the country, which is in the world, and also we'll talk about a few countries जहाँ पे outside से you think it's very developed, there are no such inequality, but from inside the picture is something different. So without any further ado, let us go straight into the podcast. To start with, I would like to say something like inequality has become the norm. हर जगह, be it any developed nation, underdeveloped or developing nation, inequality can be found anywhere and everywhere nowadays. मतलब although we are living in the 21st century where we believe that people are equal, but still we find कि ये सब कहने की बातें हैं कि हाँ हम तो सबको इक्वल समझते हैं, पर रियलिटी में आज बहुत तरह की इनइक्वालिटीज हैं जो हमारे वर्ल्ड को इरोड कर रही हैं. टू स्टार्ट विथ, इंडिया में सबको पता है कि सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और इसके लिए बहुत सारे सोशल वर्कर्स एंड स्कॉलर्स ने बहुत कुछ कोशिश किया है टू इरेडिकेट दिस. बट फिर भी आज के टाइम पे भी इफ यू सी, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है. We still believe in the caste system. We still believe in a lot of things which come under the social inequality thing. आज भी we see that the small caste, upper caste वाला मतलब चलते ही रहता है. तो talking about the financial thing, the financial inequality, तो of course India में financial inequality बहुत ज़्यादा है क्योंकि you see the gap, that income gap is huge. We see people जो अभी भी poverty line के नीचे हैं इंडिया में, वो भी वैसे लोग भी हैं और वैसे भी लोग हैं जो आज के टाइम पे वर्ल्ड के सबसे richest men हैं. मतलब a lot of billionaires come from India. Yeah, so even during the pandemic, 75 million people, I was reading this statistic yesterday, and 75 million people were rendered poor in this pandemic alone. And a lot of businessmen have gained more than 1/3 of their wealth during the pandemic. During the pandemic. So we see that the gap. एंड ऑफ कोर्स इसमें अगर हम देखें तो हम फाइनेंशियल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी को अलग नहीं कर सकते बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड. अगर आपको सोशली बॉयकॉट किया जा रहा है तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे. यू सी, फाइनेंशियल वेज में भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यू आर सोशली बॉयकॉटेड बाय पीपल. दिस इज व्हाट हैपेंस विद द लोअर स्टेट ऑफ पीपल, लाइक द लोअर कास्ट पीपल, क्योंकि उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना पाए. इसीलिए इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज्यादा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं दिस काइंड ऑफ inequality is very much deeply rooted in our society. और of course एक society को बदलने में बहुत टाइम लगता है. मतलब बहुत सालों से before independence era से कोशिश चली आ रही है कि हम ये जो हमारे मनी प्रेजुडाइजेस हैं एक दूसरे के लिए वो खत्म की जा पाए. बट अभी भी सी कि today also there are men who believe that women are subordinate them. So if this mentality persists, I don't know where India is gonna be. And even in the rural area, like अभी कुछ महीने पहले जो हाथरस इंसिडेंट हुआ था, so कहीं ना कहीं the problem is कि we are not acknowledging the social inequality which is there in our society. Financial वाला हम लोग कुछ ना कुछ हद तक बहुत ज़्यादा हम लोग acknowledge कर रहे हैं, but social inequality आज के टाइम पे दिक्कत ये है ना कि लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सोशली भी इंडिया में बहुत इनइक्वालिटीज हैं. वी हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग दिस थिंग. वी हैव स्टार्टेड कि अरे दिस वाज द टॉप ऑफ 1990s और 80s, बट इट इज स्टिल वेरी मच रेलेवेंट. एकदम रेलेवेंट है. एंड आई थिंक दिस इज व्हाई वी कैन से कि कहीं ना कहीं हम लोग सोशल इनइक्वालिटी के मामले में बहुत पीछे जा रहे हैं. बिकॉज I have a problem and I don't acknowledge the problem, then I don't know how are we going to find the solution, because of course, in order to find the solution first you have to know the acknowledge. problem. Of
course, Hmm. the first step is you know the problem, you try to understand why it exists, and then only you're gonna find solution for it. So, Yes. so in this episode, we're gonna talk mostly about the financial and social inequality and how they are interconnected, and also about we'll also talk from the perspective of different countries other than India. Yeah. So in Japan, Yeah. Japanese hate Chinese. The Chinese वहाँ पे minority है, and they hate them Hmm. like anything. I don't True. know why. Do you know Yeah, Japanese actually, Chinese को क्यों hate करते हैं? true. I mean, I'm not sure, but it is something. मतलब मैंने खुद से अगर मैं अपने kind of understanding से बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि if you see China and Japan, they follow two different ideologies. है ना? कहीं ना हाँ. कहीं China follows I'm sorry, China is a kind of communist country. They follow Karl, मतलब of course Karl Marx को नहीं follow करते हैं, but they are a communist country. Whereas Japan is a very much capitalist country. We believe that, right? हाँ हाँ. सो जहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी सारे डिफरेंसेस फॉलो करेंगे. ऑफकोर्स और चाइना और जापान का बहुत हिस्ट्री भी रह चुका है, तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल कि यहाँ पे मतलब इनके आइडियोलॉजीज मैच नहीं करते हैं, और फिर मतलब इट्स समथिंग कि जो अगर पास्ट की राइवलरीज प्रेजेंट में आके डाइल्यूट होती हैं, खत्म नहीं होती हैं. सो या वी नो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज ऑफ हो गई हैं अभी भी चाइना एंड जापान फेस टू फेस. अब आके तो नहीं कहते कि वी डोंट लाइक ईच अदर, बट ऑफ कोर्स जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके दिमाग से नहीं जाती हैं चीज़ें. So we Like see हमारे अगर में इंडिया पाकिस्तान को लेके इधर तो I भाई don't think एग्जैक्टली कि आई वाज गोइंग टू से दिस कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का इशू है तो आज भी हमारे दिमाग में सारी चीजें भली बड़ी अलाइव, मतलब वो फ्रेश है जो हुआ हाँ. था नहीं हुआ था. भले गवर्नमेंट अभी देख मतलब जो भी अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आर ट्राइंग, गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान इज ट्राइंग कि इंडिया से भाई बना ले अपना, वरना हमारा तो कुछ हो नहीं पाएगा. यू नो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग, और हो सकता है But आने वाले टाइम पे ये hate कहीं ना I think ये hate कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीडिया और गवर्नमेंट की हाँ तरफ आती है. ऑफ कोर्स नॉर्मल पब्लिक थोड़ी ना हेटरेट फैलाएगा. एज अ मतलब इंडियन सिटीजन मैं किसी पाकिस्तानी सिटीजन को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, बिकॉज भाई मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ अपने कंट्री में, मेरा नॉर्मल लाइवलीहुड है, उसका भी सेम है. If this hate mongers are the politicians and the media, and I'm very much kind of astonished to see what is happening in the media, because मतलब कहीं ना कहीं being in a democratic country like India, I see that मतलब ठीक है मैं बहुत सारे episodes में कह चुकी हूँ कि the way media is trying to Influence us. influence us is very much threatening to अरे the तुझे very पता है nature क्या of हुआ? democracy. Yeah. तुझे पता है बैक इन फरवरी या मार्च जो किस कंट्री ने पाकिस्तान की औरतों के साथ शादी करना बंद कर दिया था? हाँ सॉरी यूएई हाँ यूएई या आई डोंट रिमेम्बर, सऊदी अरब, दोनों में से किसी एक कंट्री ने ना पाकिस्तानी वुमेन के साथ अपने मेन का शादी करवाने मतलब ऐसा लॉज निकाल दिया कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ पाकिस्तानी वुमेन टू मैरी अ मैन ऑफ either Saudi Arab or UAE. I don't exactly remember. And I don't know about it. Okay, so now I mean you won't believe it. It is simply because of some social kind of prejudice which happens in that country. Like क्या होता है कि वहाँ के 40 साल के जो होते हैं आदमी, they come and marry 20-year-old women from Pakistan. तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा socially prejudice फैल रहा है दोनों कंट्री के बीच में. तो ना इस चक्कर में वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज निकाल दिए कि इट मेड नियरली इम्पॉसिबल कि इस कंट्री का आदमी पाकिस्तानी वुमेन के साथ शादी कर सके. सो अभी तो मैं अपने घर पे हूँ एंड माय अंकल्स दे लव टू वॉच अर्नब गोस्वामी का शो एंड सो ना मतलब ऐसे ही अचानक से मेरी आंखों के सामने पड़ गया. मतलब he was literally debating कि पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका and I was like भाई this is just because of a normal एक कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया कि सोशल प्रेजुडिस को खत्म करने की कोशिश की है. वही तो मतलब इनके दिमाग में ना we don't acknowledge or
appreciate good things. That's the what? issue. और फालतू की ऐसे डिबेट्स दिखा के मेन मुद्दों से तो एक तो ध्यान मोड़ रहा है। मेन मतलब मुद्दा इनका है कि मोटिव बांग्लादेश यही हमसे है। आगे निकल गया है वही तो पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश इतना आगे बढ़ चुका है एंड इतनी छोटी सी कंट्री है बांग्लादेश ऑलमोस्ट, और वो हमसे इतना आगे बढ़ चुके हैं। मतलब और हमने उनके उनको लिबरेट किया है हमारी अम्मी ने, और आज वो हमसे ही आगे निकल गए। वही दिस तो इज द मेन मुद्दा। वही तो और ऑल्सो जो अभी क्या कहते हैं इतना सारा कुछ चल रहा था बांग्लादेश में मोदी के विजिट पे, बड़े प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो वो तो कुछ और मामला था ना। वहाँ पे एक पार्टी है जो which is kind of very orthodox, तो ये अलग मामला था। हाँ वो तो नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि मतलब ऑल्दो इंडिया वाज trying hard to make a to find a place for itself in the Southeast Asia as a whole, तो इतना ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी वगैरह है ये सब इसीलिए है ना, to kind of counter China, to be टू काउंटर चाइना। जैसे चाइना अपने वैक्सीन पॉलिसी से लोग मतलब कंट्रीज को अपने साइड कर रहा है, वही इंडिया और क्वाड कंट्रीज भी यही करना चाह रही थी ना। इस क्वाड की मीटिंग में भी तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा है, तो जाके देखो, वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड एंड इट्स वैक्सीन पॉलिसी। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डू द सेम। और ऐसे मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें था कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव से इंडिया में इतना ज्यादा केसेस सर्ज हो रहे हैं और इंडिया के पास खुद के वैक्सीन नहीं है अब, और इंडिया इतना ज्यादा वैक्सीन डोनेट कर रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं डोनेट कर रहा है। एक्सपोर्ट इज तो डिफरेंट थिंग, एक्सपोर्ट करना है तो हमें पैसा तो आएगा आ रहा है, हाँ, पर डोनेट कर रहा है इतना ज्यादा। वो तो और हमारे लोग हैं। अच्छा वैक्सीन लगने के बाद भी तो हो जा रहा है कितने लोगों को वायरस। नहीं तो वो मतलब इट्स लाइक फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट का कुछ इशू है ना, कि आपको जब तक दोनों शॉट नहीं मिल जाएगा तो। अच्छा वैक्सीन इज ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको नहीं होगा, इट्स लाइक वो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, तो जब तक एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगे तब तक तो आपको हो ही सकता है। ये क्या कर रहा है, आपको एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा समझ गई मैं। Coming back to our topic of equality, so of course financial equality का अगर हम देखें तो इंडिया of course बहुत ही ज़्यादा पीछे है when it comes to financial equality। मतलब if we talk about in general rankings, इंडिया बहुत पीछे होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो रिच पुअर का गैप है वो कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ गया। तो I think people and I think government, I mean I don't know if government is trying something or not, but of course मतलब ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का जो मतलब इन्होंने दे रखा है मॉडल है, मुझे इसमें तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है कि इसमें ये कर क्या रहे हैं और ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लोगों से करने का, बिकॉज अभी भी ये बहुत एम्बिगुअस है। This whole thing is very much ambiguous। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है आम पब्लिक कि इसके कि लोगों को पता ही नहीं है। बस हमें क्या है कि इंडिया में यही होता है कि जब भी बातें थोड़ी ज्यादा सीरियस होने लगती है ना, ये हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, ये लो बेटा अपना मुंह बंद रखो। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कोई स्कीम भी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत जो है, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी था, ये भी एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। सो व्हाई डिड वी क्रिटिसाइज ट्रंप बैक देन as Indian if we support this protectionist policy? एक बात where it's something that is very much kind of simple is कि इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में अभी भी हम भले ही कहें कि हमारी जो काइंड ऑफ लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 80% पहुंच चुकी है, बट आज भी लोग जो लिटरेट लोग हैं ना, वो आज भी ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही चीज है और क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मीडिया वाला रोल आ जाता है, मीडिया उन्हें जो समझाती है वो समझ लेते हैं। जब ट्रंप ने क्या है तो मीडिया ने कहा नहीं भाई ये तो गलत है, ये कैसे कर सकते हैं, आप तो सुपर पावर हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते। भाई तुम सुपर पावर हो तो तुम अपने देश को डेवलप थोड़ी कर सकते हो, तुम्हें तो बस दूसरों को डेवलप करना है। वही बात है ना, वही तो। और मेरे हिसाब से इवन आत्मनिर्भर भारत इज नॉट अ गुड पॉलिसी। ऑफ कोर्स मुझे तो मेरे को तो बस ये काइंड ऑफ कहूँ सिंपल लैंग्वेज में तो एक जुमला है ठीक है क्या भाई पॉडकास्ट बैन हो जाएगा? नहीं भाई, इट्स माय ओपिनियन, ओके, सो इट्स माय काइंड ऑफ राइट टू स्पीच with आत्मनिर्भर भारत is something, I mean you know the thing with us Indian कि हमें इतना ज्यादा पेट्रियोटिक बना दिया जाता है ना बचपन से, कि हमें सही गलत का
फर्क नहीं समझ पाते। पैट्रियोटिज्म और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना इज डिफरेंट। इज डिफरेंट। हमें वही चीज समझ में नहीं आता है। आप हमें लगता है गवर्नमेंट कि के गवर्नमेंट खिलाफ को बोल सपोर्ट रहे हो, करना देश के patriotic। खिलाफ नहीं बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ चाइना आके हमारे देश को लूट के लेके एकदम नहीं अपना यार। कॉलोनी बना ले, मैं ये तो नहीं चाहती। ऑफ कोर्स आई एम वेरी पैट्रियोटिक एज एन इंडियन, पर अब कोई भी गवर्नमेंट इर्रेस्पेक्टिव कौन सी भी गवर्नमेंट है अभी मेजोरिटी में, वो कुछ भी आके कहेंगे और हम इन रिटेलिएशन कुछ कहेंगे ना, ये तो गलत है। सही बात है। हमें एज एन इंडियन हमें बचपन से ये चीज नहीं सिखाया जाता है। एंड आई थिंक कि अगर हम बस इतना सीख लेना कि सही क्या है गलत क्या है इसमें फर्क करना, then we'll be a lot ahead intellectually। हमारे दिमाग में पेट्रियोटिज्म का मतलब ही उल्टा समझाया जाता है। हमारे दिमाग में पेट्रियोटिज्म का मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट करे वो सही, अगर तब आप वो अगर मानते हो तो आप पेट्रियोटिक हो। इतना फालतू लगता है मुझे। अभी इकोनॉमिस्ट का लास्ट मंथ शायद एक आर्टिकल आया था जिसमें था कि इंडियन वुमेन को काइंड ऑफ इंडियन मेन से कम मिलता है, कितने परसेंट सैलरी कम मिलता है। तो ना वो ट्विटर में डाला था इकोनॉमिस्ट ने, और इंडियंस जाके इसके नीचे बोल रहे इकोनॉमिस्ट इज लिबरल, इकोनॉमिस्ट इज जुमला, इकोनॉमिस्ट का मैगजीन मत पढ़ो। एंड आई वाज लाइक भाई यू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है इंडिया में। The first step is कि people don't acknowledge। हमें कोई क्रिटिसाइज करता, हमारे देश को कोई फॉरेनर आके क्रिटिसाइज करता, वी आर लाइक इस बंदे में ये खराबी, इसके देश में ये खराबी। अरे भाई उसको एक्सेप्ट करो, वो तुम्हारा भलाई कर रहा है। You remember all that fuss about Snapchat का CEO या फिर कुछ ऐसा हुआ था ना? उसने कहा भी नहीं था बेचारे ने, नहीं था। वही तो, उस बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं था, पर इंडियंस पूरा Snapchat अनइंस्टॉल, एकदम देशभक्ति मोड ऑन हो गया था। मुझे ये देख के एक याद आ रहा है, इंग्लैंड में जब क्या नाम है क्वीन एलिजाबेथ II का जब नया नया रेन था, उस वक्त उनको जिस तरह से लॉर्ड एल्ट्रिकम नाम था ना उनका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लॉर्ड एल्ट्रिकम ही था शायद। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग प्लीज टेल अस द राइट प्रोनाउंसिएशन इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी गाइस, हैपेंस। हाँ, तो उन्होंने जब क्रिटिसाइज करना शुरू किया क्वीन को, तो of course it a lot of people I've watched this in Crown, मैंने ये Crown में देखा है। हाँ, मैंने इसके ऊपर रहता है ना? हाँ, जर्नलिस्ट रहता है, या ट्रू, लॉर्ड एल्ट्रिकम। तो उसने जब क्रिटिसाइज करना शुरू किया क्वीन को, तो पहले तो लोगों के अंदर का पैट्रियोटिज्म आया कि नहीं भाई गलत है, बट जब उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि नहीं, हिज पॉइंट इज काइंड ऑफ सही है। क्योंकि उसने एक चीज कही जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसने कहा कि पहले मोनार्की was the rule and republic was an exception, but now republic is the rule and monarchy is an exception। तो इंडिया में आज यही चीज हम ये कहना चाह रहे हैं थ्रू दिस एपिसोड कि काइंड ऑफ जो भी मतलब इंडिया में आजकल क्या हो गया ना कि जो कुछ भी जिस तरह से मीडिया हमें समझाती है हम उसी तरह से समझ रहे हैं। तो जहाँ पे भी अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो उसमें क्रिटिसिज्म इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अरे तुझे पता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि देख मीडिया शोज अस व्हाट वी वांट टू सी। हम चाहते हैं कि इंडिया एकदम डेवलप्ड हो जाए, मीडिया हमें वही दिखाती है कि इंडिया इज वेरी डेवलप्ड, बट दिस इज नॉट द ट्रू थिंग टू डू। नो वन टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, थिंग्स लाइक दैट। और जो करते हैं उन्हें लिबरांटू पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, एंटी नेशनल का टैग लगा देते हैं। वही तो, ये बहुत बेकार हो रहा है। और नहीं तो क्या। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी कम्स फ्रॉम कहीं ना कहीं, तो दिस इज समथिंग जो हम सीखते हैं। आई मीन आई रिमेम्बर मेकिंग I talked about it in school maybe or somewhere, I don't remember it, but remember I told you कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती नहीं है कि इक्वालिटी हम इक्वली नहीं सोच रहे हैं। Men are not the problem here कि उन्हें लग रहा है कि they are superior than us। इसमें प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी हमारी है। We as a society is failing ourselves क्योंकि इंसान वही सीखता है जो वो देखता है। Okay, so now coming back to the topic, we said that we will even talk about some countries जहाँ तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि inequality या किसी भी तरह की prejudice होगी, but वहाँ है। So as you all know, I think this is very common ना कि Russians are very xenophobic। Yeah, true। मतलब ये तो सच बात है कि they can't stand Americans, but as Indians they can stand Indians, don't worry, you can go to Russia। Yeah।
but they are very xenophobic, especially the ones who live inland, जो अंदर रहते हैं रशिया के. मतलब मेन सिटीज वाले तो इतने नहीं होते because they are educated, you know, they are quite broad It's just like India, जैसे रीजनल इंडिया में देखो तो नहीं भाई, रीजनल इंडिया के लोग ना अंग्रेजों की बहुत आदर सत्कार करते हैं. वो लोग जाते हैं टूरिस्ट करके तो हाँ वो तो अलग बात है कि ठीक है अभी इंडिया का कहीं ना कहीं ये कल्चरल थिंग है, अतिथि देवो भव वाला थिंग, बट मन में अभी भी देखो तो पाकिस्तान के खिलाफ उनके मन में प्रेजुडाइज है. हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है. चाइना के खिलाफ है. चाइना के खिलाफ तो एक रीसेंट थिंग है. हाँ, पहले उतना नहीं था, अब हो गया है जितना, बिकॉज ऑफ पहले तो एक अलग था ना, हिंदी चीनी भाई. हाँ वही तो. हाँ तो अभी उनका और ऑस्ट्रेलिया में भी पता है सेम थिंग है. तो वहाँ के इंग्लैंड मतलब जो अंदर के लोग होते हैं ना, जो मतलब मेन सिटीज में नहीं रहते हैं, अंदर में जंगल में रहते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा xenophobia है. और अभी तो ऑस्ट्रेलिया में वो भी इतना बड़ा वो भी हुआ था ना रैली प्रोटेस्ट कि वो नेशनल डे का लेके कुछ हुआ था ना, दे वांटेड टू चेंज इट क्योंकि उसी दिन इंग्लैंड ने कब्जा किया था ऑस्ट्रेलिया पर, उसी दिन वो अपना नेशनल डे टाइप कुछ सेलिब्रेट करते हैं. जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि a few handful people, billionaire people. I know a lot of people won't agree to this, but billionaire people kind of they try to influence the government. ऑस्ट्रेलिया में भी ये बहुत ज्यादा होता है. इट्स वेरी मच में भी ये होता है, सब जगह होता है, बिकॉज पावर एंड वेल्थ आर काइंड ऑफ समथिंग जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है. इफ यू हैव मनी यू कैन बाय द गवर्नमेंट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट कहीं ना कभी कभी देख गवर्नमेंट जो है वो बिलियनियर्स को पत्ता नहीं देती है. लाइक फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प एंड जेफ बेजोस, उसको पता नहीं देता था, उसको बल्कि बहुत बेइज्जत करता था. बट ऑस्ट्रेलिया के बिलियनियर्स आर काइंड ऑफ इंडिया के बिलियनियर्स की तरह. they have full power over them. If you guys have seen Mirzapur too, you would understand this relationship between politicians and businessmen. नहीं मतलब जनरली भी समझ ही जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत होती है. वही तो बहुत सारे क्या नाम है वेब सीरीज में ऐसा पोर्ट्रे किया गया विच इज काइंड ऑफ ट्रू भी, क्योंकि मतलब आपके पास पॉलिटिकल पावर जरूरी है. इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू नीड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट टू यू नो सर्वाइव. अच्छा, so now coming back to our India and the social inequality here, guys, see, as your hosts, we can only ask you to acknowledge this problem firsthand, because as you have to agree that there are people who are not given the basic right, जैसे कि you can't go to the same school as an upper caste वाले people are going and stuff like that. So please, as your hosts, we request you that you acknowledge this problem firsthand. There are people who are still untouchables, and as you and I are educated, you know that ऐसा कुछ नहीं होता. Everyone is born equal. एक यूरोपियन भी वैसे ही पैदा होता है जैसे एक इंडियन पैदा होता है, एक अफ्रीकन पैदा होता है. So अगर we all come together now, then we can make a huge impact. And I know you all will think कि बस कहने की बातें, but ये कहने की बातें नहीं है. इंडिया भी तभी आजाद हुआ जब सारे लोग साथ मिलके आए, and we drove away the Britishers. So अब बारी है अपने ही हिंदुस्तानी भाई बहनों की हमारी हेल्प करने की. So why are we not acknowledging कि हाँ भाई वो लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं. If you acknowledge it, if you have a friend who is from backward classes and you behave with them in the same manner जैसे तुम एक upper class के साथ behave करते हो, it will make a huge difference, believe me. अगर लोग मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ गाँव जाओ कंप्लेन करो, मत करो भाई, बस तुम जितने लोअर क्लास लोगों को जानते हो हाँ उनके साथ अच्छे से बिहेव करो. वही तो अगर लोग सबको इक्वली ट्रीट करने लगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी काइंड ऑफ छिपा के रखते हैं. वो नहीं करना पड़ेगा उन्हें. दे आर अशेम्ड ऑफ देयर आइडेंटिटी बिकॉज वी मेक देम फील अशेम्ड ऑफ दैट थिंग. तो इट्स हाई टाइम वी डोंट डू दैट. वी शुडंट डू इट kind of, क्योंकि doesn't matter in which caste, in which religion you are born in, it doesn't kind of speak for you. You speak for yourself. Your struggle, I mean,
इतना कुछ है स्ट्रगल करने के लिए भाई, सिर्फ कास्ट को लेके क्यों स्ट्रगल करे इंसान? इसमें वही ना। हमारा चॉइस थोड़ी था कि हमें राजपूत पैदा होना है या हमें दलित पैदा होना है. So सच we में। should And control it's things still which are in our hand. and still कुछ लोग होते दे आर लाइक हम तो राजपूत है भाई, हम तो भाई तो क्या हो भाई गया। तो क्या तुझे करे पता है भाई? मैंने ना एक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कहाँ पढ़ा या सुना था, बट मैंने ना एक बहुत अच्छा मतलब सुना था कि कैसे यू डिफरेंशिएट बिटवीन आई एम प्राउड ऑफ इट एंड यू नो प्राइड और एरोगेंस के बीच में कैसे डिफरेंस हाँ. करें। तो प्राइड इज समथिंग कि मान ले टुडे आई एम अ सेल्फ मेड बिलियनियर, so I'm proud of it क्योंकि मैंने भाई वो काम किया है, that is why I'm a billionaire now. So if I go ahead and say I'm proud of being an Indian, क्या मेरा कोई choice था कि मैं इंडियन पैदा हूँ? या मैंने ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन किया इंडिया को बेटर बनाने के लिए? तो I can't go ahead and say कि I'm a proud Indian क्योंकि that will be arrogance. Yeah. So this is the basic difference between pride and arrogance. And if you're someone who says कि I'm a Rajput, हम तो राजपूत है, हम तो पंडित है, so please don't do that because Yeah. आपका कोई जन्म से पहले आपने कोई ऐसा काम नहीं किया या हाँ. ऐसा कुछ contribute नहीं किया that will make you a Rajput or anything like that. Yeah. And So the same it's high goes for the time we Dalit. break this class barriers, caste barriers, religion barriers, and we need that push. क्योंकि it's something जो हम नहीं कह रहे हैं, आपने बचपन से सुना होगा कि this needs to stop, this has to change, और आज भी इतने सालों बाद भी आप यही सुन रहे हो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है बिकॉज हमें Because no लगता one है is doing कि their हाँ part. ऑफ कोर्स आज भी अगर हम लोग देखें तो हमारे क्लोज ग्रुप्स में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आप उनकी पूरी सच्चाई नहीं जानते होगे बिकॉज मे बी दे बिलोंग टू सम कास्ट, दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज उन्हें लगता है कि यू विल डिस्क्रिमिनेट देम. सो और सबकॉन्शियसली आप करोगे भी. हाँ of course आप उनके सामने ना करो but I remember, I mean I don't want to quote their names but I know people who discriminate their fellow, कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स क्या मतलब मैं कुछ लोगों को जानती हूँ ऐसे जो हुआ मे बी दे आर ब्राह्मण, दे आर राजपूत और वो अपने से नीचे ही अपने कास्ट में जो उन्हें लगता है कि हमसे नीचे उन्हें तक डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ऑल्दो दो लोग जब खुद पंडित हैं वो दोनों लोग मतलब मिलके किसी और कास्ट के बारे में बुराई कर रहे हैं. दो लोग जो राजपूत हैं या फिर फॉर दैट मैटर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कास्ट और एनी something like that particular, no comments on a particular caste, just saying that two people who belong to same community are kind of disrespecting a person from that same community but who they think are below them. So of course you understand the gravity of the situation. This is very serious. Yeah. So we need to stop them. और also this kind of ये सिर्फ religion को आज के टाइम पे क्या है ना कि इंडिया में फिर भी कास्ट को लेके थोड़ा हम जो मतलब सिटीज में रह रहे हैं जो लोग रीजनल एरियाज में रूरल एरियाज में तो ये अभी भी बहुत ज्यादा ही मतलब कहीं ना कहीं दिखता है वेरी मच प्रेवलेंट है. बट सिटीज में क्या है आज के टाइम पे है कि लोग कास्ट में उतना ज्यादा नहीं जा रहे हैं कि चलो ठीक है कास्ट वाला इशू उतना नहीं करते हैं बट वहाँ पे क्या करते हैं रिलीजन वाला इशू उठा लेते हैं, हिंदू Muslim and stuff. So this needs to stop. Hey, just because I believe in a different ideology than yours, I am in no way better or less than you. Exactly. I mean, we need cultural harmony because हम सबके struggles are kind of same. ऐसा नहीं है कि just because जिंदगी में इतना कुछ है स्ट्रगल करने को, ये कास्ट रिलीजन को क्यों हम लाए इसके बीच में? We know this is a very generalized topic and most people won't even listen to us and skip us because उन्हें लगता है यार भाई घिसा पिटा रोना धोना. But I mean अगर अभी तक आप ये सुन रहे हो तो it's only because you are not doing your part to make things better. In fact हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे कुछ करने से क्या होगा, हम कुछ करेंगे तो उससे क्या ही डिफरेंस हो जाएगा. But this thinking is really dangerous. I mean you should do your part. And even you see जो आजकल आते हैं मीम पेजेस पे इंग्लैंड ने इंडिया का ये चिराया and I would say not just इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्रीज, पर्शिया ने किया, पर्शियन इन्वेडर्स ने बहुत कुछ किया.
या तैमूर किस मिडिल कंट्री से था? कौन उसका तैमूर द लेन? वो एक्चुअली था अफगानिस्तान के और आगे से था, मतलब ही वाज काइंड ऑफ फ्रॉम क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया। तो हाँ, तो उसने एक मंगोलियन आए थे, याद है, चंगेज हाँ खान? हाँ हाँ जंगिस खान। चंगेज खान ने। हाँ So, see, the thing with history is that you should know about it because, as ताकि Shashi Tharoor वापस ना has हो। put it, huh? हाँ we As should know Shashi Tharoor about is, things so that we don't let that happen again. नहीं, हाँ वो तो ठीक है, but शशि थरूर ने बहुत अच्छे से बोला कि if you don't know where you have come from, you will never know where you are going to go. हाँ So this is the reason why you should know history. अब इसका मतलब ये नहीं कि you go and start spreading hate to the normal citizens of that country कि भाई तेरे country ने तो मेरे country से ये चुराया है, वो चुराया है. I mean, see, जो कुछ किया है, I agree कि यूरोपियंस back then बहुत ज़्यादा racist हो रहे थे, और क्या पता अभी भी वो racist हो. मैं तो यूरोप गई नहीं हूँ. अभी तो but I still believe कि racism exists अभी भी. it does, it still does. Of course. और हाँ, तो it doesn't mean कि you just go and start spamming in random this country का page कि your country has stolen this from us, that from us. Please, हमारा कोई नूर वापस दे दो, ये कर दो, वो कर मिलने दो. तो वाला नहीं है, देखो. हाँ. To be very very You can't honest. bring that back. अब So it's इसमें time बस we hate start. बढ़ रहा है. It's time we stop mongering hate and accept कि जो हो गया वो हो गया, and try to make a better future. Yeah, that's what. क्योंकि अब तो मिलने वाला है नहीं कोई नूर या whatever होते हैं स्कूल. We don't even have an idea. So So I that think was it. we'll conclude with this. Yeah. So all we wanted to convey in this episode was कि it's high time we stop this social inequalities, क्योंकि जब तक social inequalities नहीं खत्म होगी, financial inequality देखो कभी नहीं पता- खत्म हो पाएगी. देखो पता है, I heard someone say कि जैसे अमेरिका में है ना कि ब्लैक पीपल वाइट पीपल वाला, वैसे इंडिया में है अपर क्लास एंड लोअर क्लास वाला. एंड दैट वाज सो ट्रू. Yeah, it's true. और वैसे ही जब यूएस में अभी इतना ज्यादा ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला इतना चल रहा था, इंडियंस लोग भी डाल रहे थे अपने स्टोरी पे, भाई जो तुम लोग खुद डिस्क्रिमिनेट करते हो अपने फेलो क्या नाम है सिटीजन्स को, तुम लोग डाल रहे हो ब्लैक लाइफ मैटर्स के भी. कोई क्या नाम है, इवन कोई लोअर कास्ट के इंसान को देख के तुम ही मतलब गेड़ियां मारते रहते हो कि अरे भाई ये तो भाई ये है, दलित है, हाँ ये है, वो है, ऐसा है वैसा है. तो अ वेरी गुड पिक्चर आई रिमेम्बर ऑफ दिस इज मसान, एक मूवी थी जो बिल्कुल फॉर्चुनेटली फर्स्ट मूवी शायद. तो प्लीज वॉच इट इफ यू हैव टाइम. यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ अ person from this low caste people. So it's a very good movie. So it's high time we stop this. I mean हम educated लोग हैं भाई, 21st century में जी रहे. अभी भी अगर आप upper caste, lower caste, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन कर रहे हो ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, पर अगर ऐसे रहा ना तो इंडिया तो आज क्या 500 साल बाद भी डेवलप नहीं होने वाला है. I remember an economics teacher in our school. I mean, he was not an economics teacher, but he used to tutor. मतलब he was a kind of tutor who used to teach economics. So he used to say कि जब हम छोटे थे तब भी हमने यही पढ़ा था economics में कि India is a developing country. आज जब आप भी यही पढ़ रहे हो, आपके बच्चे भी यही पढ़ेंगे. And you know why? Because because if you want to change the society, if you want to change the country, you have to change the society. और ये सोसाइटी तो नहीं बदलने वाली, तो देश भी नहीं बदलने वाला, और हम डेवलपिंग से डेवलप के मतलब क्या कहते हैं उस प्लेस पे जाने वाले. हाँ, प्लेस पे जाने ही नहीं वाले. सो इट्स हाई टाइम टू चेंज योर मेंटालिटी. And the best thing about is कि do your part. That's it. और कुछ नहीं करना है तुम्हें. हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कैंपेनिंग करो, जाओ इतना सारा कुछ करो, गवर्नमेंट से लड़ो, यहाँ रैली निकालो, वहाँ रैली निकालो. जस्ट आपके अंदर की जो कहीं ना कहीं की मतलब प्रेजुडाइज जो आपके अंदर है वो खत्म करो. आई स्टिल नो अ लॉट ऑफ पीपल जो किसी को जानते भी नहीं है, पर बस उन्हें इसलिए जज कर लेते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कास्ट से हैं या किसी स्पेसिफिक रिलीजन से हैं. सो दिस हैज टू चेंज.
एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी आई एम वेरी ग्लैड कि हम ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हार्मनी बहुत ज़्यादा है। मैं दिल्ली में भी रही हूँ, पर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइजेस है फॉर द हिंदू मुस्लिम और फॉर द कास्ट थिंग। बट मैं कोलकाता में भी रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी है। ऑफ कोर्स वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर प्रेजुडाइज नहीं होगा, बट यहाँ पे फिर भी मुझे बहुत कम लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीपल काइंड ऑफ ट्राई देयर बेस्ट कम्युनल राइट्स वगैरह ना फैलाएं। मतलब ऑफ कोर्स होता तो है ही, पर फिर भी मुझे लगता है कि इन कंपैरिजन टू दिल्ली, कोलकाता में उतना हेट मॉन्गरिंग नहीं है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन थिंग। What say? Yeah, so that was it for the Also, podcast. yeah, and also we are on Instagram, so if you Yeah, want, we have made our Instagram account yeah, finally, and also we post really informative content there in form of reels, so that आप अपने entertainment में कुछ सीख भी लो, because we all know कि आजकल ज़्यादातर लोग बस reels देखते रहते हैं Instagram पे most of their free time. You know, the thing with being creative is कि you have to be entertaining. If you're not entertaining, मतलब आप कितने भी creative हो जाओ, आप masses तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. Right. So guys, we are trying our level best to kind of do something which will make our fellow countrymen a bit more I mean, हम बस चाहते हैं कि आप वैसे सिटीजन्स ना रहो जिन्हें देश दुनिया की कोई खबर ही ना है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो क्या नाम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन एकेडमिक्स में, एजुकेशनल नहीं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, पर देश दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं होती है। सो वी डोंट वांट यू आर सब्सक्राइबर्स और द पीपल, मतलब वी आर टारगेटिंग द होल कंट्री। सो या वी वांट कि आपको देश दुनिया की खबर हो, आपको बेसिक चीजों के बारे में पता हो, एंड दैट इज व्हाट वी वांट कि इन द मतलब पूरी कंट्री में, हमारी पूरी कंट्री में कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसे बेसिक चीजों के बारे में पता ना हो। तो ये हमारा मोटिव है, एंड ऑल्सो वी यू आर गोना सपोर्ट अस, so please do, because that's what keeps us motivated. So we'll end it here. Thank you guys. Bye. Bye.